हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम अगेन इन माय क्लास। आई होप आपने लास्ट जो वीडियो था वो देखा होगा। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव अंडरस्टूड बाय वाचिंग प्रीवियस वीडियो और बाय लर्निंग द चैप्टर सो फार दैट there are three states of matter: solid, liquid and gas, and three states can change their state from their respective state. Means solid can be converted into liquid, liquid can be converted into gas, and this is happening because of one important process is occurring, which is vibrations in the molecules, and these molecules vibrates, initiates the kinetic energy, and all these occurring due to one important energy, which is heat energy. And to provide heat energy, what we require temperature. Hence temperature is the most important factor. Temperature is the most important factor which initiate the changes of matter. सॉलिड को अगर टेम्परेचर देंगे तो वो गैस में नहीं बनेगा, वो लिक्विड होगा। लिक्विड को देंगे तो गैस। So this is the linear processes occurring. We also studied the melting point, boiling point, fusion की जो प्रोसेस है जिसको मेल्टिंग कहते हैं वो भी हमने देखा। We also understood latent heat of vaporization, latent heat of solid, latent heat related to liquid, वो सब हमने डिस्कस किया। latent heat of fusion हमने डिस्कस किया, and we understood that without this nothing can happen. Without this the states of matter can't change. Yet we have to understand one last important topic and one last important process that we are yet to understand. We have understood that solid is converted into liquid, liquid is converted into gas under the effect of temperature. We have taken the example of ice to water, water to water. This is the most basic example we came across. और उसकी लाइफ में देखते हैं, that is why we took this example. Now let's understand another process. अगर मैं आपको कहूँ कि कोई ऐसी एक चीज है जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है, of course under the effect of temperature. If I tell you that there is certain process which is happening in this way, it would be a shocking experience for you कि ऐसा कैसे हो सकता है, how direct solid से gas कैसे हो सकता है. So can this happen? Let's question this. Can this happen? So answer is yes. Under the effect of temperature, yes. Under the effect of heat energy, yes, this can happen, but to the certain chemicals, certain matter. Chemical तो नहीं बोलेंगे अभी क्योंकि उससे हम लोग familiar नहीं है, and we are understanding the physical nature of the matter. ये पूरा चैप्टर physical nature के बारे में है. So एक ऐसा matter है या फिर ऐसे कुछ matter होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं. Okay, you must have seen white color balls. White balls देखे होंगे आपने, इसको नैप्थेलिन balls कहा जाता है और इसको हिंदी और गुजराती में फिनाइल की गोलियां कहते हैं, जो जनरली कबर्ड के अंदर रखी जाती है, कॉकरोचेस वगैरह ना आए. जनरली ऐसे जगह पर जहाँ पर आप घर में कपड़े रखते हो, तो वो कपड़े जो रखते हो वो जगह पर आप ये देखते हो नैप्थेलिन balls. Okay, naphthalene balls. Naphthalene balls are put there. वो एकदम से देखना
धीरे धीरे उनकी साइज छोटी होती जाती है। नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं, फिनाइल की जो गोलियां होते हैं, वो आप कबर्ड के अंदर कहीं पर रखा होता है तो उसकी जो वो क्या होती है, उसकी साइज छोटी होती जाती है। ओके, उसकी साइज छोटी होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसकी साइज छोटी क्यों हो जाती है? उसका एक शेप जो है वो चेंज कैसे हो सकता है? आई हैव दिस, ये इसकी बात कर रहा हूँ, नेफ्थलीन बॉल। आपने घर वाले अभी आप जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपके फादर या मदर को बुलाना और बोलना कि क्या हम कपट में ये रखते हैं, ऐसी किचन में रखते हैं? हाँ रखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ना कॉकरोचेस है, इंसेक्ट है, वो भाग जाता है। दिस इज वन टाइप ऑफ मैटर, सॉलिड मैटर। लेकिन ये छोटा हो जाता है और गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? द वन प्रोसेस responsible for that is called sublimation. Sublimation is the process. Now what is sublimation? The process in which solid is converted into every solid matter is converted into gaseous matter. सॉलिड जो है वो गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू एनी लिक्विड शेप, लिक्विड मैटर। लिक्विड के अंदर, लिक्विड में का जो हम कहते हैं ना कि लिक्विड का स्टेट आता ही नहीं है, लिक्विड स्टेट डज नॉट कम हियर। द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस। टेंपरेचर एक है, हाँ टेंपरेचर एक लिमिट, एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये होता है। टेंपरेचर, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशंस आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस प्रोसेस आल्सो। बट here one important or one observable action is going on. Observable actions कौन सी है? ऐसी एक्शन है जिसमें solid से होना चाहिए liquid, but it is not happening here. So to understand this definition, we have to perform one activity. We cannot perform that activity as you all know कि हम लोग स्कूल में नहीं है या कोई लैबोरेटरी के अंदर नहीं है। So what we can do? We can illustrate, we can make figure of that activity which is there in our book, and by knowing that activity we can understand this process well. This is the definition. You should note down this definition. It's a unique process which is occurring. So let's understand that activity which is there. What we have to take? Material में हमको लेना है camphor, which is also called ammonium chloride. हिंदी में इसको कहते हैं कपूर। जो पूजा पाठ में जो विश्वास रखते हैं वो लोग कपूर का इस्तेमाल करते हैं। They use camphor. It's a one type of solid, बहुत छोटा होता है। उसका यूज होता है कहाँ पर? उसका यूज होता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, जनरली मेडिसिन की तरह भी उसका यूज होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में। खास करके अभी कोरोना का टाइम है तो स्टीम लेते वक्त कपूर अंदर डालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि जो वेपर लेते हैं पानी का, विक्स डालते हैं, कपूर डालते हैं, जिससे हमारा ये जो नॉस्ट्रिल है जहाँ पर हमारा जो इनहेलेशन कैपेसिटी बढ़ जाता है और एक तरह का एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है इसका। We have to take this and perform an activity. एक चाइना प्लेट लेनी है। चाइना प्लेट मतलब नॉर्मल एक प्लेट जैसा लेना है, और इस प्लेट को एक स्टैंड के ऊपर रखना है। एक ट्राइपॉड स्टैंड है,
ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड जो है उसके नीचे हम रखने वाले हैं एक बर्नर। यहाँ पर हमें रखना है अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड जो है उसके, ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसके ऊपर हमें एक रखना है फनल। क्या है? फनल जो इन्वर्टेड है। फनल को इसके ऊपर एग्जैक्ट रख इस तरह से कवर करना है पूरा ये फनल, और यहाँ पर लगा देना है कॉटन। Now we have to start providing heat. जैसे इसको हीट देंगे क्या होगा? The moment we provide heat to camphor, what will happen? This camphor will be directly converted into gas. गैस में कन्वर्ट होगा, इसके पार्टिकल्स यहाँ तक जाएंगे और फनल यहाँ तक गर्म नहीं है, तो वो वापस ठंडे होके इधर फनल की जो नैरो पार्ट है वहां पर जमा होते हैं, वो भी कैम्फर ही है। तो आप सोचोगे कि सॉलिड से गैस हुआ, गैस ऊपर गया, गैस वापस हो गया सॉलिड, तो उसका मतलब क्या होता है? किस तरह का चेंज हो रहा है? सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। There are two processes occurring. First we have already discussed. Second, I did not tell you because I wanted to show you this activity. Then I was going to tell you this. So solid to gas आपको पता है कि ये कौन सी प्रोसेस हुई? Sublimation. Ammonium chloride due to the action of heat is converting into gas, which is sublimation. This gas particles of camphor is going up, but cotton plug is there. That is why कॉटन प्लग की वजह से वो वापस नीचे आएगा और यहाँ फनल के आसपास जमा हो जाएगा। दैट प्रोसेस जो गैस से वापस सॉलिड हुआ इज कॉल्ड डिपोजिशन। कुछ बुक्स में ये गलत दिया है, सब्लिमेशन ही दिया है, बट गैस से सॉलिड टू डिपोजिशन मतलब जमा होना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वापस जो अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस which we are observing, this is an example to understand very important processes, sublimation and deposition. Okay, so this is the another effect of temperature in which some chemicals like naphthalene balls, some chemical like camphor gets converted into gases, and solid to gas, gas to solid. This is a nice experiment to show you because till now we have understood that हमेशा solid liquid में पहले होता है, liquid से gas होता है, but some chemicals, some matters are there which can perform this type of actions. Okay, so I hope you have understood this particular process. If you have not, watch this video again and you may understand this process quite nice. I would like you to repeat the video because you have to do this, otherwise you won't be able to grasp the topic. ग्रास्प करना मतलब दिमाग में उतरेगा नहीं जब तक आप इसको प्रॉपर समझते नहीं हो। ओके, सो नेक्स्ट ये जो प्रोसेसेस है, ये सारी अब तक प्रोसेसेस थी जिसमें हमने 3 मैटर के बारे में हमेशा डिस्कशन किया। तो एक हमने ये एक समझदारी दिखाई कि धीरे धीरे करके हमने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, गैस टू सॉलिड, ये सारी प्रोसेसेस को हमने समझा अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, वाइब्रेशंस, ये हमने देखा। नाउ बुक में एक पर्टिकुलर वर्ड दिए हैं ये प्रोसेसेस के लिए, जिसको मैं आपको शॉर्टली दिखाता हूँ, लेकिन उसको आपको डिटेल में होमवर्क में लिख के मुझे सबमिट करना है। क्या? तो देखो आप
सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड होता है जब मेटल तो उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ओके, लिक्विड से गैस होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। ओके, गैस से लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है मैटर तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड होता है सॉलिड डिपोजिशन। 1 2 3 4 5 6 processes which we have understood. You have to write the definitions. Definitions इसकी वर्ड फॉर्म में, ये वर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको सेंटेंस के फॉर्म में, ये वर्ड फॉर्म में आपको सेंटेंस के फॉर्म में लिखनी है। These definitions are very important for your exams as well, crucial for your studies. Otherwise, you won't be able to understand further chapters. बहुत ही important definitions है आपके याद रखने के लिए। So I hope you have understood this process. तो अब तक हमने टेम्परेचर को देखा कि टेम्परेचर इज द की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, बट अनदर फैक्टर इज आल्सो देयर एंड दैट इज प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेस करना, किसी को प्रेस करना। प्रेस करना मतलब क्या? कि कोई चीज हो, अगर चाहो तो उसको एकदम से आप छोटी कर सकते हो प्रेस करके। चॉक है, उसको प्रेस करोगे, चॉक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेशर दोगे तो क्या होगा? प्रेशर देते हैं तब क्या होता है? तो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, बाहर से फोर्स लगता है और चीज छोटी होने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। चीज छोटी होती है, क्या होता है मॉलिक्यूलर लेवल में वो समझते हैं। हाउ कैन प्रेशर बी रिस्पॉन्सिबल? ए बी सी के अंदर यू हैव टू प्रेडिक्ट ये किसके मॉलिक्यूल लग रहा है, ये किसके लग रहा है, ये किसके लग रहा है। तो दिस ऑल जो है वो है सिलेंडर्स है, ये सारे जो है वो सिलेंडर्स है। दिस इज आल्सो अ सिलेंडर। ये है पिस्टन, पिस्टन जिससे हम प्रेस करते हैं। आपने डॉक्टर का इंजेक्शन देखा होगा, डॉक्टर इंजेक्शन कर देने के लिए देते हैं वही, उसको
उसको पिस्टन कहते हैं, जिससे प्रेस करते हैं। तो पिस्टन और ये सिलेंडर से देखने से पता लग जाता है इजीली। ये जो है वो गैस है क्योंकि स्पेस बहुत, ये लिक्विड है स्पेस थोड़ी कम है, और ये जो किसके पार्टिकल्स लग रहे हैं, these are particles of solid। सॉलिड की क्यों आपको पता है तो भी बता रहा हूँ। सॉलिड के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह नहीं होती, इसमें थोड़ी जगह होती है, लिक्विड गैस में बहुत ज्यादा जगह होती है। अब देखो पोजीशन ऑफ पिस्टन, देखो यहाँ पर पिस्टन किधर है, इधर पिस्टन यहाँ पर है और यहाँ पर पिस्टन सबसे क्लोज है, मतलब कि ऊपर से यहाँ से प्रेशर दिया जा रहा है, इधर से भी प्रेशर क्या अप्लाई हो रहा है, प्रेशर। मैंने आपको जब गैस पढ़ा रहा था तब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताया था, and I also told you that this is going to be understood by you again, which is gas has the ability to compress itself। compress करने की ability है। What is compressibility? Compressibility means ability to face pressure। pressure face करने की ability। You can see here piston is giving pressure, here pressure is come, pressure is low, the matter is gas, pressure increased, gas is converted into liquid, pressure is extreme, solid बन गया। This particular activity is performed, आप बोलोगे कौन सा मैटर है, तो मैटर इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड has taken by the experimental analyst। ये जो CO2 लेके एक्सपेरिमेंट किया, कि बुक में भी आप देखोगे थोड़ा इससे तो अच्छा ही ड्राइंग देखने को मिलेगा। बुक अभी आपके पास है तो आप देखो प्रेशर पिस्टन से दिया जा रहा है और व्हाट इज हैपनिंग हियर, द गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड नॉट बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर but by the effect of piston, and that effect is of pressure। This is a clear cut conclusion that under the effect of pressure, atmospheric pressure जिसको बोलते हैं, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है ना वो हमें प्रेशर देता है, वो प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं, मल्टीपल करते हैं, बढ़ाते हैं, तब क्या होता है, मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक। गैस हैज द एबिलिटी टू कंप्रेस, हियर गैस इज कंप्रेस्ड इनटू लिक्विड, नाउ लिक्विड इज फर्दर कंप्रेस्ड सॉलिड। आपको बात पता नहीं होगी कि आपके घर पे जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस डालते हैं पहले, लेकिन गैस को उतने प्रेशर से डालते हैं कि अभी आपके घर पे जो सिलेंडर में जो गैस है वो एक्चुअली लिक्विड के फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, लिक्विड है। आप उसको हिलाओगे ना तो पानी हिलता है, वैसी आवाज आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी वो प्रेशर में है। गैस का बॉटल जो है घर पे वो प्रेशर में है, इसलिए उसके अंदर जो गैस है, भले ऐसा बोलते हैं कि गैस का बॉटल है लेकिन अंदर है लिक्विड के फॉर्म में, बट जैसे वो गैस का नॉब स्टार्ट करते हैं तो गैस बाहर आता है, तो प्रेशर कम हो गया, जो बन गया वापस गैस। अनदर एग्जांपल, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल टू रिमेंबर। सो दिस इज द प्रोसेस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस व्हिच इज used। Now what happens when carbon dioxide and CO2, which is the carbon dioxide, under the effect of pressure converted into dry ice? When carbon dioxide, which is a gaseous form,
is given pressure, we can say high pressure dry ice is formed, which is solid CO2, also called as dry ice. In Gujarati it is called sukko baraf. Use in the industry, industrial purposes के लिए इसका यूज होता है. So but it is stored under very low temperature, बहुत कम टेम्परेचर पे बहुत हाई प्रेशर में स्टोर कर. हाई प्रेशर, if प्रेशर इज, अब देखो ड्राई आइस है, इसका अगर लो प्रेशर हो गया, प्रेशर कम कर दिया या तो नॉर्मल प्रेशर कर दिया, लो प्रेशर भी नहीं, नॉर्मल अभी जितना प्रेशर है ना अभी करंटली उतना भी प्रेशर कर दिया तो ये वापस बन जाएगा CO2 गैस, लिक्विड गैस. So by providing normal pressure it is converting into gaseous form. तो यहाँ पर क्या किया, प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर बढ़ाया सॉलिड बन गया, प्रेशर कम किया गैस बन गया. Interesting, right? So this is happening with many gases. Okay, and in the industries, बड़ी-बड़ी कंपनी के अंदर इस तरह से ये सारी प्रोसेसेस की जाती हैं. तो इस तरह से ये जो लिक्विड से गैस, गैस टू लिक्विड जो है वो प्रेशर की वजह से, with the effect of pressure this is happening, and under the temperature also, effect of temperature also. क्या समझा अब तक, क्या समझा? What we have understood, temperature and pressure are key factors to change the matter, to change the state. Fill in the blank पूछ सकते हैं. Dash and dash are responsible, dash and dash factors are responsible to change the state of matter, and this that is temperature and pressure. तो समझ में आया होगा, ये बहुत ही इजी टॉपिक है ये. If you don't understand this, please let me know, and please watch video again if you have not gotten this. So temperature, pressure, उसका एक रोल है स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में. आई होप आपको ये जो अभी का जो टॉपिक था वो समझ में आया. नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ अवर चैप्टर, एंड आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी आपको पहले से सारे वीडियो अगर नहीं दिखे तो देख लेना है, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू योर क्लास वीडियो, एंड देन वी विल आल्सो अरेंज अवर टेस्ट. सो बी प्रिपेयर्ड with your notebooks, be prepared with your homework, and be prepared with your chapter number 1. Okay, so thank you for watching this video, and I will see you again.